Hello friends, welcome back to our YouTube channel Endurance Duo. Sorry for the delay guys, but I'm here again with the next topic which is on procedure for registration of trust and its taxability. So let's get started. Step number 1. We have to decide the following: name of the trust, address of the trust, objects of the trust which can be charitable or religious, one settlor of the trust, two trustees of the trust. Minimum requirement is 2, but there is no restrictions on maximum. Property of the trust which can be movable or immovable property, but there should be a small amount of check or cash is given to the initial property. These are the basic conditions. Step number 2, prepare the trust deed on stamp paper of the requisite value, because the rates of the stamp duty varies from state to state, so kindly check the current rate of stamp duty applicable in your state. Step number 3. Now the trust deed on stamp paper of requisite value. There should be one passport size photograph and copy of the proof of identity of the settler, two trustees and each of the true witness. मतलब 2 trustee के लिए एक एक witness. Signature of the settler on all the pages of the trust deed and witnessed by the 2 persons on the trust deed. Okay. Now the step 4, go to the local register and submit the trust deed along with the one photocopy for registration. The photocopy of the deed should also contain the signature of the settler on all the pages. At the time of the registration, the settler and the 2 witnesses are required to be personally present along with their identity proof. ट्रस्ट डीड बनने के बाद हम लोग लोकल रजिस्टर के पास जाएंगे फॉर द registration of the trust deed, and at the time of registration settler and the 2 witness को personally present होगा along with their identity proof. Step number 5, the register retains the photocopy and returns the original registered copy. photocopy register अपने पास रख लेगा और return कर देगा जो original registered copy of the trust deed. Now how can you get a PAN card of trust? ट्रस्ट के लिए अपने पैन कार्ड कैसे ले सकते हैं? सो अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ट्रस्ट डीड अलॉन्ग विद द पैन एप्लीकेशन. ओके, द फॉर्मेट ऑफ द पैन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टर टी. द 4th लेटर मस्ट बी टी. तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये पैन नंबर एक किसी ट्रस्ट का है. इन केस ऑफ ट्रस्ट इज फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लाइक copy of the certificate of registration issued in the country where the applicant is located. मतलब जहाँ का applicant located है वहाँ का certificate of registration attested by the apostille in respect of the countries which are signatories to the Hague-Hopstel Convention of 1961 और by the Indian Embassy. मतलब ये सब से वो लोग को duly attested करवाना पड़ेगा. Copy of registration certificate, अप्रूवल ग्रांटेड टू सेटअप ऑफिस इन इंडिया, और एक तो अप्रूवल लेना होगा कि हम लोग ऑफिस में ट्रस्ट सेटअप कर रहे हैं. ओके, हु हैज़ टू साइन द पैन एप्लीकेशन? हु विल साइन द एप्लीकेशन? जो ट्रस्टी है विल साइन द पैन एप्लीकेशन. लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी काम इन केस ट्रस्टी इज अनेबल टू साइन. ओके, नाउ देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ट्रस्ट. इट कैन बी चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट, it is the trust which has an objective of charitable purpose or like voluntary help. These are non-profit based and their main purpose is towards the activities which are for the benefit of the society, like yoga, education, medical relief, etc. But the religious trusts are not defined under the Income Tax Act. The creation of the religious trust is governed by the personal laws. It can be deemed as trust which are involved in the activities of promoting religion. अगर कोई ट्रस्ट जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड है और वो योगा एडुकेशन दे रहा है तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, और अगर कोई ट्रस्ट है जो प्रमोट करे रिलीजन को तो वो रिलीजियस ट्रस्ट है. Now we will understand the taxability of trust. Okay, categories of income. There can be different types of category of income जिस पे कैसे कैसे टैक्स लगेगा वो हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, डोनेशन ऑफ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन. जो भी वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि वो कॉर्पोरस हो या फिर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए हो तो वो एग्जेम्प्ट है. बट अगर कोई वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द income from property held under trust. Second type of income, if there is an anonymous donation, that is donations where donee does not maintain record of identity. जो donee है
वो मेंटेन नहीं करता आइडेंटिटी या कोई भी पर्टिकुलर्स ऑफ द डोनर, तो उस टाइप का डोनेशंस को एनोनिमस डोनेशंस बोलते हैं। तो उसका कैसे टैक्सेबिलिटी होता है, जो भी डोनेशन होगा एक्सीडिंग हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, उस पर 30% टैक्स लगेगा। एंड anonymous donation received by trust established wholly for religious and charitable purpose। अगर कोई डोनेशन हम लोग को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए मिला है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द सेम मैनर, दैट इज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो ट्रस्ट का इनकम बन जाएगा। थर्ड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज। अगर कोई हम लोग प्रॉपर्टी को हेल्ड करके रखे हैं फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज, अगर उससे इनकम आ रहा है तो अगर वो इनकम अप्लाइड हो जा रहा है तब वो एग्जेम्प्ट है। बट इफ इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट असाइड फॉर द एप्लीकेशन टुवर्ड्स चैरिटेबल, इट वुड बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। मतलब अगर कोई इनकम को हम लोग एक्यूमुलेट करके रखें कि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे तो वो 15% तक एग्जेम्प्ट है, और जो 85% है उसको हम लोग को अप्लाइड करना पड़ेगा। This will be understood in the next slide. If number 4, capital gain from asset held under trust in whole। अगर कोई asset है, अगर उस पर capital gain हो रहा है तो net consideration is utilized fully for acquiring another capital asset। अगर उसका जो भी पैसा आया है वो हम लोग दूसरा capital asset खरीदने के लिए लगाए हैं, so the entire capital gain is deemed to have been applied, तो वो exempt हो जाएगा। And if the net consideration is used पार्शली, अगर जैसे नेट कंसिडरेशन 1 लाख का और हम लोग सिर्फ 50,000 यूज़ किए हैं, तो जो भी हम लोग कैपिटल गेन यूटिलाइज इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट्स ट्रांसफ़र, जो ओल्ड एसेट हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका कॉस्ट को छोड़ के जो एक्सेस है वो हम लोग एग्जेम्प्ट माना जाएगा। हाउ शुड इनकम बी अप्लाइड टू बी एग्जेम्प्ट, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं कि इनकम अप्लाइड हो जाएगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो कैसे अप्लाइड होगा। ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई एटलीस्ट 85% ऑफ इट्स इनकम। ट्रस्ट का जितना भी इनकम है उसको 85% अप्लाइड करना होगा एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर टैक्स प्रोविजंस। चैरिटेबल पर्पस क्या क्या होता है, रिलीफ ऑफ द पुअर, एडुकेशन, योगा, ये सब चीज़ के लिए उस लोग को ट्रस्ट को अप्लाइड करना पड़ेगा, तो उसका 85% इनकम को अपना अप्लाइड करना पड़ेगा। कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन, मतलब ट्रस्ट, हाउ कैन ट्रस्ट कैन गेट द कंडीशन, मतलब कि ट्रस्ट को एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा। इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन एवरी ट्रस्ट हैज़ टू अप्लाई 85% ऑफ इट्स इनकम टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस। अपना ट्रस्ट 85% टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस में अप्लाई करेगा। इफ़ इट फेल्स टू डू, स्टिल इट कैन क्लेम रिडक्शन बाई फॉलोइंग कंडीशंस। अगर वो 85% अप्लाई नहीं भी करता है तो भी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, सच ट्रस्ट फर्निशेज फॉर्म नंबर 10, कि वो अपना नोटिस दे कि मेरा एक्यूमुलेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन बिफोर द ड्यू डेट। मेंशन द पर्पस, अगर पर्पस बताए, और इनकम शैल नॉट बी एक्यूमुलेटेड फॉर मोर देन 5 years। वो जो भी इनकम एक्यूमुलेट करे वो 5 years तक ही कर सकता है। एंड मनी सो एक्यूमुलेटेड इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन स्पेसिफाइड मोड। अगर ये 4 कंडीशन होता है तभी उसको हम लोग अप्लाइड मानेंगे। क्या क्या है, अगर वो फॉर्म नंबर 10 फर्निश कर दे, अगर वो मेंशन कर दे पर्पस है वो किस लिए एक्यूमुलेट कर रहा है, इनकम को 5 years तक ही वो एक्यूमुलेट कर सकता है, और वो इनकम को या मनी को वो किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकता है, वो स्पेसिफाइड मोड में ही रहना चाहिए, तभी वो हम लोग डीम्ड अप्लाइड मानेंगे। वेयर शुड एक्यूमुलेटेड इनकम बी इन्वेस्टेड, जो भी एक्यूमुलेटेड इनकम है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी डिबेंचर्स फुल्ली और अनकंडीशनली गारंटी बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और एक्सेट्रा। However, if income is not accumulated, it is taxable as follow। अगर वो कंडीशंस हम लोग फॉलो नहीं करते तो वो इनकम कैसे टैक्सेबल होगा। इफ़ इनकम इज़ अप्लाइड फॉर पर्पस अदर देन चैरिटेबल पर्पस, अगर वो इनकम को हम लोग अदर देन चैरिटेबल पर्पस में यूज़ करते हैं तो ईयर ऑफ टैक्सेशन होगा ईयर ऑफ सच एप्लीकेशन। जिस साल में हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे उस साल में टैक्सेबिलिटी हो जाएगा।
इनकम सीज टू इन्वेस्ट, अगर हम लोग उसको एज ए स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट नहीं करते तो ईयर इन विच इट सीजेस टू बी इन्वेस्टेड, नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज, सो इट विल बी इन द सिक्स्थ ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा. डोनेटेड टू ट्रस्ट रजिस्टर्ड इन सेक्शन 12AA, सो ईयर इन विच इनकम इज सो डोनेटेड, जिस साल में हम लोग डोनेट कर रहे हैं अदर ट्रस्ट को तो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा. Exemptions not to apply in certain cases, but in certain cases exemptions apply नहीं होता है. क्या क्या? No exemption is available to the following incomes of trust. Number 1, if the entire income from property held under trust for private religious purpose which does not benefit the public. अगर जितना भी इनकम है वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, इफ़ द इंटायर इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट स्टैब्लिश फॉर द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए हम लोग इंटायर इनकम है तो वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. इफ़ द इंटायर इनकम एंड द प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन लाइक ट्रस्टी या सेटलर ये लोग के लिए यूज़ हो रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. इफ़ द इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड मोड, तो ये सब केसेस में एग्जेम्पशन हम लोग को नहीं मिलेगा. नाउ देयर आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. शुड अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और NGO ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो वो NGO या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो ही नहीं पाएगा. विच फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग फॉर ए रजिस्ट्रेशन? फॉर्म नंबर 10A. शुड द ट्रस्ट डीड बी इन राइटिंग? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही देखे थे कि ट्रस्ट डीड इन राइटिंग होना चाहिए और वो रजिस्ट्रार को फोटोकॉपी वगैरह देना है और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपरली. When can a donor claim deduction under section 80G? A donor can claim a deduction under section 80G for donation to a registered charitable purpose. मतलब अगर कोई भी पर्सन चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर रहा है तो वो 80G के अंदर डिडक्शन ले सकता है. Thank you. If you have any queries regarding this topic, then feel free to reach us at sajda.db@gmail.com, or you can simply put your query in the comment section below. Thank you for watching the video. Follow us on Instagram Endurance Duo. Thank you.